آج کی بڑی خبر یعنی آج 11 بجے قیدی نمبر 804 یعنی چیئرمین پی ٹی آئی کے گرفتاری کے حوالے سے جو فیصلہ آنا ہے اس سب کو انتظار ہے۔ توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا معطل ہوگی یا نہیں، ان کو رہائی ملے گی یا نہیں، یہ سوال ہے سب کے ذہنوں پہ اور یہ محفوظ فیصلہ آج 11 بجے سنایا جائے گا۔ عدالتی عملے نے چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلاء کو آگاہ کر دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری نے یہ فیصلہ محفوظ کیا ہے۔ خاص طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے جو دلائل ہیں انہوں نے مزید جو اس میں التوا ہونا چاہیے مہلت کی اس میں استدعا کی ہے، مگر دیکھنا یہ ہے کہ یہ صورتحال کس طرف کو جاتی ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جیل میں سابق وزیر اعظم اور چیئرمین پی ٹی آئی کو جو سہولیات میسر ہیں اس کے حوالے سے بھی کافی چہمہ گوئیاں ہو رہی تھیں۔ لوگوں نے کہا عام طور پہ جو سیاسی قیدی ہوتے ہیں، جو پولیٹیکل پرزنرز ہوتے ہیں، ان کو اڈیالہ جیل لے کے جایا جاتا ہے، لیکن یہاں بالخصوص اٹک جیل کا انتخاب کرنا بھی اپنے آپ میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تشویش کا باعث ہے۔ اس کے علاوہ مختلف نوعیت کی آپ خبریں سن رہے ہیں، مختلف تصاویر سوشل میڈیا پہ گردش کری ہیں کہہ کے کہ یہ ان کی سیل میں موجود تصاویر ہیں۔ کچھ لوگوں نے یہاں تک کہا کہ ان کو بالکل پریویسی نہیں دی جا رہی کیونکہ اوپن بیت الخلاء ہے اور بڑے ابہور سرکمسٹانسز ہیں، تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو وہاں پہ کیمراز لگائے جا رہے ہیں ان کی پریویسی کو کمپرومائز کرتے ہوئے ان کی تصاویر بنانے کے لیے۔ سب سے پہلے ان کو جو سہولیات میں اثر ہیں اس پہ ہم آپ کو ایک رپورٹ دکھاتے ہیں، اس کے بعد عرفان قادر صاحب جو کہ فارمر اٹارنی جنرل ہیں پاکستان کے، ان سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے اس کے بارے میں کیا اس وقت تک ایکسپیکٹیشنز ہیں۔ لیٹس ٹیک اے لک ایٹ دس رپورٹ اینڈ ویل بی رائٹ بیک۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ قانون کے مطابق قیدی کے اہل خانہ منگل کو ملاقات کر سکتے ہیں، جبکہ قیدی کے وکیل اور 2 سے 3 افراد بدھ کے روز ملاقات کر سکتے ہیں۔ 7 اگست سے 23 اگست تک 3 بار چیئرمین پی ٹی آئی کی اہلیہ اور 3 بار ان کے وکلاء کی ملاقات کروائی گئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو 5 ڈاکٹرز کی ٹیم بھی معائنہ کرتی ہے۔ ناشتے میں ان کو بریڈ، آملیٹ، دہی اور چائے فراہم کی جاتی ہے۔ دوپہر اور رات کے کھانے میں پھل، تازہ سبزیاں، دالیں اور چاول مینیو کا حصہ ہیں۔ رپورٹ کے مطابق جیل انتظامیہ ہائی پروفائل قیدی کو بہترین سہولیات اور سیکیورٹی فراہم کر رہی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو سب سے محفوظ ہائی اور ہائی آبزرویشن بلاک میں رکھا گیا ہے۔ ملحقہ بیرکوں کو بھی خالی کرا لیا گیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو 11 فٹ لمبے اور 9 فٹ چوڑے بیرک میں رکھا گیا ہے، جہاں رنگ کروایا گیا، پکا فرش اور ایک پنکھے کی سہولت دی گئی ہے۔ جی جناب علی، تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف نوعیت کی اس کے بارے میں رائے ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق تو جو جیل ہے اس نے اپنی بہترین سہولیات قیدی نمبر 804 کو دی ہیں، چیئرمین پی ٹی آئی کو دی ہیں، جو کہ ایک ہائی پروفائل قیدی کے طور پہ جانے جاتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں عرفان قادر صاحب، فارمر اٹارنی جنرل ہیں پاکستان کے، ان سے جانتے ہیں کہ آج 11 بجے کس قسم کا فیصلہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ السلام علیکم عرفان صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ عرفان صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اس کیس کی سنوائی میں اور فیصلے میں جو اتنا التوا ہو رہا ہے، لوگوں کا خیال یہ بھی ہے کہ اگر قیدی نمبر 804 یہ ہائی پروفائل پرزنر اس میں رہائی بھی پا لیتے ہیں تب بھی دوسرے کیسز میں امپلیکیٹ ہو کے دوبارہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کس طرح یہ معاملات آگے بڑھیں گے؟ ہاں ڈیفینیٹلی آپ صحیح فرما رہی ہیں کہ بہت سے کیسز ان پہ اب بن چکے ہیں جی، اور ایک سے زیادہ کیسز ایسے ہیں جو کہ کافی سیریس بھی ہیں جی، تو ان کو دیکھتے ہوئے اگر ان کی آج رہائی ہو بھی جاتی ہے اور ان کی سینٹنس اگر سسپینڈ ہو بھی جاتی ہے اس کیس توشہ خانہ کیس میں، تو دوسرے کیسز میں عام تاثر یہی ہے کہ ان کو اریسٹ کر لیا جائے۔ صحیح۔ عرفان صاحب، آپ سمجھتے ہیں سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کی طرف اشارہ لوگ بار بار دے رہے ہیں، یا سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اب کسی اور کیس میں گرفتاری نہیں ہوگی، کیا یہ تاثر درست ہے؟ دیکھیں، سپریم کورٹ کو اس قسم کی آبزرویشنز نہیں کرنی چاہیے۔ جب نیچے کیسز چل رہے ہیں ہائی کورٹس وغیرہ میں، تو اس پہ کوئی بھی ایسی آبزرویشن جس سے کہ وہ جو ہائی کورٹ کے کیسز یا ٹرائل کورٹ کے کیسز پریجوڈس ہوں، تو ججز اس طرح کے ریمارکس نہیں کرتے، بلکہ ججز جو ہیں وہ اپنے فیصلوں کے ذریعے بات کرتے ہیں جی، وہ وربلی بات نہیں کرتے، جس سے کہ جو پینڈنگ کیسز جو ہیں ان کی صحت پہ تو اثر پڑے۔ بالکل۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی آبزرویشن سے
जजेस को इज्तनाब करना चाहिए। सही। इरफान साहब मुझे बताइए कि लीगल केस की अपनी प्रोसीडिंग्स होती हैं, उसमें काफ़ी पेचीदगियां हैं, आइनी ज़वाबित हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है, लेकिन जिस तरह ये केस का फ़ैसला महफूज किया गया है या इसमें तारीखें आगे बढ़ती रही हैं, आप पब्लिक सेंटिमेंट को किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं, खुसूसन जो PTI के हामी हैं? जी, पब्लिक सेंटिमेंट बिल्कुल, जो PTI के हामी हैं उनका सेंटिमेंट्स चेयरमैन PTI के साथ हैं, जो उनके खिलाफ हैं उनके सेंटिमेंट्स भी इनके खिलाफ हैं, क्योंकि पाकिस्तान में अगर आप देखें इस टग ऑफ वॉर में पिछले इतने सालों में तो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं एक दूसरे को कोशिश करती हैं पॉइंट स्कोरिंग की, और उनकी ये भी कोशिश होती है कि वो दूसरी अपने जो राइवल पार्टीज हैं उनको वो करप्ट कहें और अपने आप को वो ठीक कहें, और इसी तरह से ये पिछले को 15 साल से ये पैटर्न चल रहा है। सही। ये पैटर्न कब चेंज होगा ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, लेकिन फिलहाल क्योंकि PTI वाले जो थे हमेशा इसी चीज़ पे वो इक्तफा करते थे कि उनके जो मुखालिफिन हैं वो अच्छे लोग नहीं हैं और सारी अच्छाइयाँ इन्हीं में हैं, और फिर इनको चाहिए था कि जब ये हुकूमत में थे कुछ कानून साजी करते और इस तरह का कल्चर ख़त्म होता। सही। लेकिन उन्होंने इस तरह के कल्चर को ख़त्म करने की बजाय ज़्यादा हवा दी, और चेयरमैन नैब को जिस तरीके से ब्लैकमेल किया गया ये PTI के दौर में, और फिर अपनी मर्जी के उनसे डिसीजन लिए गए और अपनी मर्जी के केसेस बनवाए गए, वो कोई छुपी छुपी बात नहीं, हम सबको पता है कि वो क्या हुआ था। सही। इरफान साहब आप क्या समझते हैं कि ये केस सुनाने के बाद जो हम समझते हैं कि जज साहब के साथ जिस किस्म का रवैया अपनाया गया है, UK तक उनका पीछा किया गया, अब उनकी इस्तदा ये है कि उनको अपनी जान के हवाले से ख़तरा है, वो पब्लिक स्पेसेस में नहीं जा सकते, ये प्रेशर भी रहता है जजेस साहिबान के ऊपर? पॉलिटिकल केसेस में बिल्कुल इस तरह का प्रेशर होता है, और इसीलिए मैं तो हमेशा ये कहता रहा हूँ कि पॉलिटिकल केसेस, पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ के केसेस में जजेस को बहुत फूक के कदम रखना चाहिए, और वो मीर तकी मीर का वो शेर इस तरह की सिचुएशन में मुझे बहुत याद आ रहा है, वो है कि ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम आफाक की इस कारगाह शीशा गिरी का। तो ये जजेस को एक शीशा गिरी में से गुजरना पड़ता है इस तरह की केसेस में बेचारों को, लेकिन इसमें हम सब भी शामिल हैं। जजेस को भी कुछ खुद भी शौक होता है कि वो ज़रा इस तरह की केसेस करें और इम्पोर्टेंस लें, एक तरफ इम्पोर्टेंस मिलती है तो दूसरी तरफ उसका फॉलो भी बड़ा ख़राब होता है। तो ये आप कह सकती हैं कि दे आर बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। राइट। इरफान साहब मुझे ये बताइएगा कि 16 माह PDM की हुकूमत रही, नवाज शरीफ साहब के हवाले से काफ़ी लोग एक बाज़गश ये थी कि वो वतन वापस आएंगे, उन्होंने भी कोर्ट्स को फेस करना था। अब निगरान हुकूमती सेटअप आ गया है, इलेक्शंस की तरफ बढ़ेगा मुल्क, इलेक्शंस की डेट क्या है किसी को नहीं पता। आप समझते हैं कि ऐन मुतवक्के है कि नवाज शरीफ साहब वतन वापस आएँ और अपने केसेस को फेस करें? नवाज शरीफ साहब को तो मैं समझता हूँ कि जल्द अज जल्द आना चाहिए, और अब कोई अमर माने भी नहीं है कि वो ना आए जी, क्योंकि उनके खिलाफ जो केसेस बने हैं उसमें बहुत सारे सर्कमस्टांशियल एविडेंस जो है मिल चुका है, जिससे कि ये एस्टैब्लिश हो गया है कि वो जो केसेस थे इट वाज अ पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ऑफ द टाइम, यानी एक सियासी इंजीनियरिंग के खास वक्त में कुछ उन लोगों ने जो कि उस वक्त सिचुएशन के कंट्रोल में थे उन्होंने ये सारे केसेस बनाए थे, और फिर जब मरियम साहिबा का एक्विटल हो गया तो उससे ये बात यहाँ हो गई कि ये केसेस जो है गलत बने थे, और मियां नवाज शरीफ जैसे ही वापस आएंगे, जैसे ही उनकी अपील लगेगी वो एक्विट हो जाएंगे। गालिबन अब वो सोच ये रहे हैं कि जब वो वापस आएंगे तो क्या उनको कस्टडी में लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, इस चीज़ के बारे में शायद कोई हतमी फैसला वो नहीं अभी कर सके। लेकिन मैं समझता हूँ कि उनका केस अब इतना क्लियर कट है एक्विटल का कि जो नया सुप्रीम कोर्ट आएगा उनको सुओ मोटो नोटिस खुद ले लेना चाहिए इसका, क्योंकि ये जो पनामा केस था वो बिल्कुल सरीहन गलत फैसला था, और उसका रिव्यू और अपील भी अब प्रोवाइड करती कि ये नए कवानीन के तहत एक कानून को तो सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, लेकिन वो भी गलत किया, उस पर रिव्यू भी अभी होगा, और जब रिव्यू होगा तो नए चीफ जस्टिस आ चुके होंगे, क्योंकि मौजूदा चीफ जस्टिस जो हैं उनके बारे में जनरल इंप्रेशन है कि वो लॉपसाइडेड फैसले कर रहे हैं और वो एक खास पॉलिटिकल धड़े के साथ हैं। वल्लाह आलम ये सही है कि नहीं, लेकिन उनके अपने जजेस जो हैं उन्होंने जो सिटिंग जजेस हैं, जो चीफ जस्टिस डेजिग्नेट और सीनियर मोस्ट जजेस,
उनके अपने तासुरात यही उन्होंने फैसलों में लिखा है कि ये इरफान साहब एक और मामला, क्योंकि मेरे पास वक्त कम है, मैं चाहती हूँ कि आप उस पर भी कमेंट करें। ये मेरे ख्याल में थोड़ा सा साइड लाइन हो गई है बात, इसके ऊपर बातचीत हुई लेकिन फॉर सम ऑड रीज़न इट हैज़ बिन साइड लाइन कम्प्लीटली। प्रेसिडेंट साहब का 2 बिल्स के हवाले से जो मौक़िफ़ था कि उन्होंने उस पर सिग्नेचर नहीं किया, इन बिल्स की कानूनी हैसियत इस वक्त क्या है? हाँ, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि प्रेसिडेंट साहब के पास जब बिल आते हैं जी तो उनके पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि वो असेंट दे दें और दूसरा रास्ता ये है कि वो पार्लियामान को वापस भेजें फॉर रिकंसिडरेशन। सही। तो वो दोनों रास्ते इन्होंने नहीं अपनाए, इन्होंने एक गैर आईनी रास्ता अपना लिया और इन्होंने अपने स्टाफ को कहा कि इन बिल्स को इनफेक्टिव कर दो जी। अब इनफेक्टिव करने का आइन में नहीं है, यानी एक जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है उसको आप थ्वाट नहीं कर सकते, उसमें आप रुकावट नहीं डाल सकते। तो प्रेसिडेंट साहब ने चूंकि वो रुकावट डाली थी, और अगर रुकावट प्रेसिडेंट डालना भी चाहें तो 10 दिन से ज्यादा नहीं डाल सकते, इसीलिए वहां पे एक कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 75 में, और वो कॉन्सेप्ट है डीम टू हैव बीन पास्ड, यानी ऐसा कानून जिसपे कि असेंट ना भी दी जाए, still it would be deemed to have been passed। लेकिन इरफान साहब इस पे हम कई दफ़ा गुफ्तगू कर चुके हैं। ये जो आप शिक बता रहे हैं, इसको अमल में लाने के लिए दूसरी दफ़ा बिल का पेश होना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि ये वापस जाएगा पार्लियामान की तरफ, और उसके बाद पार्लियामान ने अगर उसमें बगैर किसी रद्दो बदल के दोबारा उसको सदर के ऑफिस भेजा और तब भी उसको साइन ना किया गया तो फिर डीम टू बी इफेक्टिव हरकत में आएगी। इस वक्त इन दोनों कवानीन की कानूनी हैसियत क्या है? हाँ, मैं आपको बताता हूँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने बात की है जी। ये जो डिस्टिंक्शन आपने ड्रॉ की है कि ये शिक 2 के अंदर अगर वो वाली सूरत हाल हो तो फिर वहाँ पे लफ्ज डीम टू हैव असेंटेड नहीं है जी, वहाँ पे है डीम टू हैव बीन पास्ड, लफ्ज ही डिफरेंट है वहाँ पे। सही। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ आपकी वसातत से कि डीम टू हैव बीन पास्ड वाली सिचुएशन यहाँ नहीं है। सही। यहाँ आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन आप सही कह रही हैं विद रिगार्ड टू डीम टू हैव बीन पास्ड। सही। शिक 3 जो है वो बात करती है डीम टू हैव असेंटेड। ओके। तो ये डीम टू हैव असेंटेड में आता है, ये जो मैं बात कर रहा हूँ। सही। जो प्रेसिडेंट ने ये जो सारे प्रोसेस को थ्वाट करने की कोशिश की है, ये डीम टू हैव असेंटेड में आता है, और अगर वो रिकंसिडरेशन के लिए भेजता तो फिर डीम टू हैव बीन पास्ड होता, और उसमें भी पास का मतलब भी यही है कि वो कानून फिर भी बन जाता और डीम टू हैव असेंटेड के साथ भी बन जाता, लेकिन ये 2 डिफरेंट सूरत हाल है। अब आपका जो सवाल है कि इन बिल की कानूनी हैसियत दोनों बिलों की क्या है, इट्स अ वैलिड लॉ, इस वक्त ये वैलिड लॉ है। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान साहब। और देखना ये है कि अब इसके क्या असरात पड़ेंगे, क्या, क्योंकि ये इफ़ेक्टिव लॉ है, इसकी कानूनी हैसियत ये है कि ये बिल्स पास हो चुके हैं, ये कानून बन चुका है, तो क्या इस कानून के तहत लोगों को ट्राई किया जा सकता है? क्या यही इशारा था सदर मुमलिकत का जब उन्होंने प्रीएम्प्टिवली उन लोगों से एक तरह से माफ़ी मांगी जो इससे अफेक्ट होंगे? इफ़ेक्ट किसने होना है, कैसे होना है, दैट इज़ येट टू बी सीन।